एक ऐसा क्षण जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, तब भी उन्होंने अपने दर्द को भुलाकर प्रेम और क्षमा का संदेश फैलाया। उनकी अंतिम पुकार यह थी, पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही यह शब्द गूंजे, धरती कांप उठी, आसमान घने अंधकार में डूब गया और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। उस समय उन्होंने कहा, सब पूरा हुआ। यहाँ सवाल उठता है, क्या यह वाकई अंत था या किसी नई शुरुआत की घंटी? आप इस बलिदान की गहराई को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में आमीन लिखें और इस महत्वपूर्ण संदेश को औरों तक पहुंचाएं। Sparkles. The moment that changed everything. When Jesus was on the cross, he took on the sins of the world. Even in his last moments, he offered forgiveness, showed love, and opened a path to salvation. Before he died, he said, "It is finished." At that moment, the earth shook, the sky turned dark, and history changed forever. His sacrifice was more than just a single moment. It was a powerful message of grace and a way to find salvation. He endured this suffering so that we might be free. Do you want to accept his love and follow his truth? If you believe, type Amen in the comments and share this message to spread his love. Sparkles. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The sky darkens, the earth trembles. Agony fills his voice. My God, why have you forsaken me? A heavy silence, a divine surrender. Father, into your hands I commit my spirit. And then, stillness. The heavens weep. The veil is torn. It is finished. But is this truly the end, or the beginning of something greater? This sacrifice was for you. Will you turn away or seek the truth? The choice is yours. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. My God, why have you forsaken me? Father, into your hands I commit my spirit. It is finished. Say this prayer for your mom, and when you finish, send it to her. Let us pray. My God, I lift my mother into your loving care today, asking for your blessings to pour over her life. Wrap her in the secure embrace of your endless love, and may she feel your presence as her constant source of comfort, strength, and peace. Surround her with your divine protection, Lord. Guard her steps, her thoughts, and her heart. Keep her safe from every visible and invisible harm, and let your angels watch over her every moment of the day and night. Grant her health, Lord, both in body and spirit. Strengthen her when she feels weary, and renew her energy when life becomes overwhelming. Be her refuge, her healer, and her unwavering support. Fill her heart with joy and her mind with clarity. Let her days be filled with laughter, hope, and the assurance that you are with her. Help her to feel deeply loved, not only by me, but by you, the one who holds her in the palm of your hand. Guide her, Lord, with your wisdom and grace. As she gives so much to others, pour back into her life the abundance of your blessings. May she know how cherished and valued she is, not just as my mom, but as your beloved child. When challenges come her way, be her strength. When doubts arise, be her clarity. When she feels alone, remind her that you are there, walking with her, holding her, and leading her through every valley and over every mountain. Protect her from any harm, physical, emotional, or spiritual, that may try to come against her. Fill her days with peace and her nights with restful sleep, knowing that you are the God who never slumbers nor sleeps. Thank you, Father, for the gift of my mother, for her love, her sacrifices, and her endless care. May I honor her always and reflect your love in the way I treat her. If you believe in this prayer, declare Amen in the comments. In the name of Jesus, Amen. This little girl lost her mum and dad. She stands at their gravestones. When your parents die, nothing is the same anymore. Cherish every moment with them. You'll miss them a lot when they're gone.
goes beyond words, it is shown through sacrifice. On this Good Friday, we are reminded of the greatest act of love. Jesus gave his life for us. His suffering led to our salvation, and through his wounds, we found healing. Today, take some time to reflect on this, seek forgiveness, and embrace his mercy. 2. The cross was heavy, but his love was greater. Pain didn't break him, and death couldn't stop him. Jesus chose to carry the cross for us, not because he had to, but because he wanted to. His love was mightier than all the sins of the world. Today, lay down your worries at his feet and accept his grace wholeheartedly. 3. Forgiven, not forgotten. Do you ever feel undeserving of God's love? Remember, Jesus didn't die for those who are perfect. He died for those who feel broken. His sacrifice washed away our past mistakes and gave us a fresh start. Accept his forgiveness and walk confidently in the light of his grace. 4. A love that never fails. While the world may let you down, his love is constant. Good Friday is a reminder of a powerful love that conquered death itself. Jesus sacrificed himself on the cross so we could have eternal life. Open your heart to his love and let his presence fill your life every day. 5. It wasn't the nails that held him, it was love. Do you know why Jesus remained on the cross? It was not the nails, but his love. He endured immense pain because he wanted to save us. Reflect on his overwhelming love today, and be sure to share that love with someone who might need it. 6. Light comes after darkness. It can feel like प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, यह बलिदान में प्रकट होता है। इस गुड फ्राइडे उस महान प्रेम को याद करें जिसके कारण यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका दर्द हमारी मुक्ति का कारण बना और उनके घावों से हमें चंगाई मिली। आज एक पल रुकें, मनन करें और उनके अनुग्रह को स्वीकार करें। 2 क्रूस भारी था, लेकिन उनका प्रेम और भी अधिक। पीड़ा उन्हें तोड़ नहीं सकी, मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी। यीशु ने क्रूस इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया, बल्कि इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने हमें चुना। उनका प्रेम संसार के सारे पापों से भारी था। अपने बोझ को आज उनके चरणों में रखें और उनकी कृपा को अपनाएं। 3. क्षमा हुआ, भुलाया नहीं गया। क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हैं? यीशु ने सिद्ध लोगों के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए लोगों के लिए अपने प्राण दिए। उनके बलिदान ने हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें एक नया जीवन दिया। उनकी क्षमा को स्वीकार करें और उनके प्रकाश में नया जीवन जिए। 4. एक प्रेम जो कभी असफल नहीं होता। दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन उनका प्रेम कभी नहीं छोड़ेगा। गुड फ्राइडे हमें उस प्रेम की याद दिलाता है जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण त्यागे ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। अपने हृदय को उनके प्रेम के लिए खोलें। 犹太士兵精心挑选了一个刑具，上面布满了锋利无比的刀片。接着他来到耶稣面前炫耀着，光是上面的刀片就能折磨死你。说完就对耶稣的后背残忍鞭打，每一鞭下去都犹如刀绞一般，皮肉的撕裂更是让人不忍直视。看到番茄汁飞溅到自己脸上，犹太士兵立马笑出了丑恶的嘴脸。随后他们又把耶稣翻转过来，继续对着他的前胸无情鞭打。尽管耶稣已经被打得血肉模糊、神志不清，但犹太士兵丝毫没有停下的意思，直到他们打到精疲力尽才肯罢休。随后士兵把耶稣拖到牢房，接着给他脑袋套上了一个玫瑰颈环，再用小飞棍对着颈环两边疯狂挤压，环上的尖刺导致他头部鲜血直流。此时的耶稣已经被折磨得痛不欲生。然而更加残忍的还不止于此，随后犹太人又拿出一个1万吨重的十字架，他们打算让耶稣扛着他走到山上。所有人不断对耶稣谩骂着，并且还用巨石不停砸向他，甚至还有士兵用鞭子对他疯狂抽打。而对这些犹太人而言，耶稣在他们眼里就是一个丧天良的大恶魔。很快在他们的无情折磨下，这个坚不可摧的男人还是倒了下去。然而万万没想到，耶稣还是凭借惊人的意志，再次将十字架强行扛了起来。而在去往刑场的路上，已经数不清耶稣摔了有多少次。一位好心的路人实在看不下去，竟选择帮助耶稣一起扛着十字架前行。就这样，二人一路上相互搀扶来到了刑场。然而残忍的酷刑才刚刚开始，只见犹太士兵将耶稣的双手死死绑在十字架上，再用10米粗的铁钉击穿他的掌心。
每狠狠敲击一下，都如同刀子刺进母亲的肉体，而他却只能在一旁无助地看着儿子被摧残。可就当准备定另一只手时，却发现手掌怎么都够不到要定的位置。但这根本难不倒聪明的犹太士兵。只见他用上吊绳绑住耶稣的手，然后使出吃人的力往前拽。很快，耶稣的四肢就被钉穿。此时，他的番茄汁也不断往外流。随后，他们把十字架缓缓拉起，将其屹立在耶路撒冷的最高处。而这惨无人道的行为，在犹太人眼里似乎是替天行道。可即便如此，善良的耶稣却还在为这些人祈祷着。最后，耶稣的鲜血径直流入了土里。下一秒，天空突然乌云密布，电闪雷鸣。母亲趁此来到耶稣身旁，以亲吻他狱卒的方式来为他做最后的祈祷。而耶稣也在生命的最后一刻，完成了他在人世间的救赎。直到耶稣饮恨西北后，上帝为他流了一滴不干的泪水，似乎要替他清洗这世间留下的污浊。顿时间，周围开始地动山摇，犹太人的教堂直接炸裂，大祭司也受到了应有的惩罚，成功下了18层地狱，永世不得超生。最终，所有犹太人也全部饮恨了西北。The wounds of Jesus are healing. A mother loses her son. She weeps, she wails, but no one listens. A man crushed under the weight of his sins cries in despair, but no one understands. A child scared and alone in the dark shivers in fear, but no one comes to hold him. Have you ever felt like this? Now picture this: Jesus hanging on the cross, blood dripping, skin torn, breath fading. And in that moment, he looks up and says, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Who was he speaking for? The soldiers? Or for us? The significance of Jesus' sacrifice in our lives. Jesus didn't just die on the cross. He carried our pain, our loneliness, our suffering upon himself. The Bible says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Matthew 11:28. So when you feel like no one sees your pain, when you feel like your heart is shattered beyond repair, remember Jesus took the nails so that you could be healed. Today, if your heart is broken, if you are drowning in pain, if you don't know how to move forward, Jesus says, "Come to me. I have already taken your suffering upon myself." Will you surrender your tears to him? आमीन। एक माँ अपने बेटे को खो देती है। वह बिलखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसे नहीं सुनता। एक आदमी अपने गुनाहों के बोझ से दबा हुआ रोता है, लेकिन कोई उसे नहीं समझता। एक बच्चा अकेले अंधेरे में डर के मारे सहम जाता है, लेकिन कोई उसे थामने नहीं आता। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है? अब कल्पना करो, यीशु क्रूस पर लटके हैं, खून टपक रहा है, शरीर छिल गया है, सांसें टूट रही हैं, और तभी उन्होंने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किसके लिए बोले थे यीशु ये शब्द? उन सैनिकों के लिए या हमारे लिए? हमारे जीवन में यीशु के बलिदान का क्या महत्व है? यीशु ने सिर्फ क्रूस पर मृत्यु नहीं सही, उन्होंने हमारे हर टूटेपन, हर अकेलेपन, हर दर्द को अपने ऊपर ले लिया। बाइबल कहती है, तुम जो बोझ से दबे हो, थके मांदे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। तो जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, याद रखना, यीशु ने तुम्हारी चंगाई के लिए पहले ही अपने हाथों में कीलें ठुकवा ली थी। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम दर्द में हो, अगर तुम समझ नहीं पा रहे कि अब आगे कैसे बढ़ना है, यीशु कहते हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा दर्द अपने हाथों में ले चुका हूं। क्या तुम अपने आंसू उनके हवाले करोगे? अमीन। दिल को छू जाने वाला सवाल, जब यीशु के हाथों में कील ठोकी गई, तो क्या तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया है? कल्पना करो, एक खुला मैदान है, गर्म दोपहर का समय है, और वहां एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं। सैनिकों ने एक मोटी और नुकीली कील उठाई, उसका हाथ लकड़ी पर रखा, और फिर पहला वार होता है। कील उसकी त्वचा को चीरती हुई हड्डियों में धंस गई। फिर दूसरा वार, खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। क्या तुमने कभी सोचा कि यह दर्द सिर्फ उसके शरीर का नहीं था? इसके पीछे तुम्हारे जीवन का भी कोई अर्थ है? इस दर्द का हमारे जीवन से क्या संबंध है? यीशु निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने यह दर्द सहा।
क्यों? क्योंकि जब तुम महसूस करो कि दुनिया तुम्हें ठुकरा रही है, जब कोई तुम्हारी पुकार को नहीं सुनता, जब तुम अंधेरे में अकेले महसूस करते हो, यीशु कहते हैं, मैंने ये सब सहा तुम्हारे लिए, लेकिन वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अन्याय के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर थी और उसके घाव से हम चंगे हो गए। यशायाह 53:5। वो घाव सिर्फ कील के नहीं थे, वो घाव तुम्हारी टूटी आत्मा को जोड़ने के लिए थे। वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, वो दर्द तुम्हारी हर एक आंसू को समझने के लिए था। आज जब तुम अकेलेपन का अनुभव करो, जब लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, एक बार क्रूस की ओर देखो। वहां से एक आवाज आएगी, मैंने तुम्हारे लिए ये दर्द सह लिया ताकि तुम्हें सच्चा जीवन मिले और वह भी भरपूर। क्या तुम इस प्रेम को अपनाना चाहोगे? कमेंट करके अपने प्रेम को जरूर प्रकट करें। आमीन। कठिन समय में हम अक्सर अनपेक्षित चुनावों के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन पाते हैं। सोचिए, एक विदेशी महिला जो इजराइल की परंपरागत दुश्मन जाति से आती है, वह इजराइल के सबसे महान राजा की परदादी बन जाती है और मसीह की वंशावली में शामिल होती है। यह कहानी है मोआब की रूत की, जिसकी वफादारी ने सीमाओं, पूर्वाग्रहों और जीवन की चुनौतियों को नकारा। आखिर एक युवा विधवा क्यों अपने देश, अपने लोगों और अपने देवताओं को छोड़कर अपनी उदास सांस के साथ रहने का फैसला करती है? जब वह नई भूमि पर कदम रखती है तो कहती हैं, जहां तुम जाओगे मैं भी जाऊंगी। ये शब्द सिर्फ वफादारी का वादा नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी कहानी का हिस्सा जो सदियों से चल रही है। उस समय में जब विधवा महिलाओं को समाज से अलग कर दिया जाता था, 2 महिलाओं ने अपने भाग्य को बदलने का साहस दिखाया। इस यात्रा में भूख, दुख, निर्वासन और वापसी शामिल हैं, और हम देखते हैं कि कैसे दया और साहसी फैसले जीवन और इतिहास को बदल सकते हैं। यह कहानी है नुकसान, वफादारी और बेथलेहम के जौ के खेत एक सुंदर प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि बनते हैं, जहां इजराइल का भगवान दिखाता है कि वह कड़वाहट को मिठास में कैसे बदल सकता है। एक मोआब महिला और एक इजरायली पुरुष के बीच की अनोखी प्रेम कहानी के जरिए। कहानी एक कठिन समय में शुरू होती है, जब इजराइल में न्यायाधीशों का युग था। उन दिनों इजराइल में कोई राजा नहीं था और हर कोई अपने हिसाब से सही काम करता था। इस उथल पुथल के समय में एक गंभीर यहूदा की भूमि पर अकाल पड़ा, जहां पहले गेहूं और जौ की भरपूर फसल होती थी। अब वहां सूखा पड़ा था। लोग खाने की कमी से परेशान थे और कई परिवारों को नहीं पता था कि वे कैसे जिंदा रहेंगे। यहूदा के बेथलेहम में एक व्यक्ति था जिसका नाम एलीमलेख था। उसकी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे महलोन और किलियन उसके साथ थे। बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर, और यह दुखद विडंबना है कि जिस जगह को खाने की भरपूरता के लिए जाना जाता था, वहां अब ऐसा भयानक अकाल पड़ा था कि लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। IMC को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने देश और जड़ों को छोड़कर मृत सागर के पूर्व में स्थित मोआब नाम की विदेशी भूमि में शरण लेने का फैसला किया। मोआब में ऐसे लोग रहते थे जो भगवान कोष की पूजा करते थे और जिनका इजराइल के साथ जटिल इतिहास था। मोआबाइट्स लॉट के बेटे मोआब और उसकी सबसे बड़ी बेटी के वंशज थे, जैसा कि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है। इसीलिए IMC के लिए यह फैसला और भी कठिन हो गया, क्योंकि एक इजराइलाइट के लिए उस भूमि को छोड़ना, जिसे भगवान ने अब्राहम और इसहाक को वादा किया था, आसान नहीं था। जैकब के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था परिवार और दोस्तों को छोड़ना और उस स्थान को अलविदा कहना जहां सच्चे भगवान की पूजा होती थी। लेकिन परिवार को भूख से बचाने के लिए इमक ने तय किया कि उन्हें जाना होगा। जब वे मोआब पहुंचे तो उन्हें एक नई संस्कृति में ढलना पड़ा, जो उनकी अपनी संस्कृति से बहुत अलग थी। मोआब के लोगों के अपने रीति रिवाज, भगवान और जीने के तरीके थे। खासकर नाओमी के लिए अपने बेटों को एक ऐसे माहौल में बड़ा करना जहां लोग इजराइल के भगवान की पूजा नहीं करते थे, एक बड़ी चुनौती थी। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि परिवार ने मोआब में जीवन कैसे शुरू किया, लेकिन यह समझा जा सकता है कि उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया होगा। नई भाषा सीखना, नए रीति रिवाजों को समझना, रहने की जगह ढूंढना और जीने का तरीका निकालना, इन सब के बावजूद उन्हें अपनी इजरायली पहचान बनाए रखनी थी। समय के साथ
नाओमी और उसके बेटे मोआब की महिलाओं से शादी करके वहां बस गए। महलोन ने रूथ से और किलियन ने औरा से शादी की। ये शादियां दर्शाती हैं कि परिवार ने स्थानीय लोगों से संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक इस्राएली परिवार के लिए विदेशी महिलाओं से शादी करना, जो दूसरे देवताओं की पूजा करती थीं, एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव था। शास्त्रों में यह नहीं बताया गया कि रूथ और औरा ने शादी के तुरंत बाद अपने मोआब के देवताओं को छोड़कर इस्राएल के भगवान की पूजा शुरू की या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी समय पर रूथ का इस्राएल के भगवान के साथ गहरा संबंध बन गया, जैसा कि आगे की कहानी में देखने को मिलेगा। एक मां और सास के रूप में नाओमी को संभवतः कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नाओमी के लिए अपनी आस्था और रीति रिवाजों को अपनी बहुओं तक पहुंचाना हमेशा मुश्किल रहा, खासकर जब वह ऐसे देश में थीं जहां के देवता अलग थे। मोआब में जीवन वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। अचानक नाओमी के पति का निधन हो गया। शास्त्रों में सिर्फ इतना बताया गया है कि वह एक विदेशी देश में विधवा रह गईं, अपने परिवार से दूर। इस कठिन समय में उनके बेटे महलोन और चिलियन अपनी पत्नियों रूथ और औरा के साथ मिलकर नाओमी का सहारा बने। उन दिनों विधवाएं अक्सर अपने बेटों पर निर्भर रहती थीं, लेकिन करीब 10 साल बाद नाओमी के दोनों बेटे भी चल बसे और बाइबल इस बारे में कोई कारण नहीं बताती। नाओमी के लिए यह असहनीय दुख था। सिर्फ 10 साल में उसने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया। अब वह एक विदेशी जमीन पर अकेली थी। बस उसकी 2 बहुएं उसके साथ थीं। उस समय ऐसी स्थिति में विधवाएं बहुत कमजोर मानी जाती थीं, क्योंकि उनके पास कोई पुरुष नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। नाओमी का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा था। अपने देश में अकाल की वजह से उसने उसे छोड़ा था, लेकिन अब वह अपने प्रियजनों की कमी महसूस कर रही थी। उसने बेथलेहम को पति और बेटों के साथ छोड़ा था, लेकिन अब वह अकेली और खालीपन महसूस कर रही थी। फिर नाओमी को खबर मिली कि यहूदा में अकाल खत्म हो गया है और भगवान ने लोगों को फिर से रोटी दी है। यह खबर नाओमी के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। उसने बेथलेहम लौटने का फैसला किया, जहां कम से कम उसे अपने पुराने रिश्तेदार मिलेंगे। वहां लोग उसे जानते थे और वह कम अकेली महसूस करेगी। इसलिए नाओमी ने अपनी बहुओं रूथ और औरा को अपने फैसले के बारे में बताया और घर लौटने की तैयारी शुरू की। यह यात्रा लगभग 50 से 70 किलोमीटर की थी और इसमें कई घंटे लगने वाले थे। यात्रा शुरू करने से पहले नाओमी ने अपनी बहुओं रूथ और औरा के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की। नाओमी को अपनी परेशानियों के बावजूद उनकी भलाई की चिंता थी। वह जानती थी कि मोआब की महिलाएं इजराइल में कठिनाइयों का सामना करेंगी। वहां उन्हें विदेशी समझा जा सकता था और नए जीवन साथी ढूंढना भी चुनौतीपूर्ण होता। इसलिए नाओमी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने अपने परिवारों के पास मोआब लौट जाएं। उसने उनसे कहा, तुम सब अपनी मां के घर वापस जाओ। उसने प्रार्थना की कि भगवान उन्हें वही दया दिखाए जैसी दया उन्होंने मृतकों और नाओमी पर दिखाई थी। उसने कामना की कि वे एक नए घर में शांति और आराम पाएं। यह सलाह निस्वार्थ थी, क्योंकि नाओमी उन्हें अपनी देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त कर रही थी। वह चाहती थी कि वे अपने देश में अपने लोगों के बीच अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें। रूथ और औरा की पहली प्रतिक्रिया भावुक थी। वे रो पड़ी और उनके मन की बात कही। वे नाओमी के साथ रहना चाहती थीं, जो उनके बीच के गहरे संबंध को दर्शाता था, जो साझा दुख और नुकसान से जुड़ा था। मगर नाओमी ने उन्हें बताया कि उसके पास और बेटे नहीं हैं जिन्हें वह उनके पति बना सके, जैसा कि लेवीरेट विवाह की परंपरा में होता है। उसने अपनी स्थिति को और भी कठिन बताया, क्योंकि उसे महसूस होता था कि भगवान का हाथ उसके खिलाफ है। नाओमी के बार बार कहने पर औरा ने आखिरकार आंसुओं के बीच अलविदा कहा और मोआब में रहने का फैसला किया। इस फैसले को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। औरा ने बस वह स्वतंत्रता अपनाई जो नाओमी ने दी थी और वही रास्ता चुना जो उसे सही लगा। लेकिन रूथ ने नाओमी को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अपनी सास के साथ रही, जो किसी भी सांस्कृतिक या पारिवारिक उम्मीद से ज्यादा वफादारी दिखाता है। फिर रूथ ने वह अमर वचन कहे जो बाइबल में सबसे खूबसूरत वफादारी में से एक माने जाते हैं। मुझे छोड़ने या लौटने के लिए मत कहो। जहां तुम जाओगी मैं वहां जाऊंगी और जहां तुम रहोगी मैं वहां रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा भगवान मेरा भगवान होगा। जहां तुम मरोगी मैं वहीं मरूंगी और वहीं दफनाई जाऊंगी। भगवान मुझे सजा दे अगर कुछ भी हमें अलग करे सिवाय मौत के। ये वादा पारिवारिक वफादारी से भी ज्यादा था।
रूथ नाओमी उसके लोगों और उसके भगवान के प्रति प्रतिबद्ध थी। जब उसने कहा तुम्हारा भगवान मेरा भगवान होगा, तो उसने गहरा वादा किया। यह विश्वास का बयान था, मोआब के देवताओं को छोड़कर इजराइल के भगवान का अनुसरण करना। नाओमी के साथ रहकर मौत तक और वहीं दफन होने की इच्छा दिखाकर रूथ ने अपनी प्रतिबद्धता की गहराई को प्रकट किया। उसने अपनी मातृभूमि, परिवार, परंपराएं और अपनी भविष्य की दफन जगह भी छोड़ने का फैसला किया। सब कुछ अपनी सास और उस भगवान के प्रति वफादारी के लिए जिसे उसने अपनाया। जब नाओमी ने देखा कि रूथ उसके साथ जाने के लिए दृढ़ है, तो उसने बहस करना बंद कर दिया। अब दोनों महिलाएं एक गहरे संबंध से बंधी हुई थीं। अपने रिश्तेदारों के साथ उन्होंने बेथलेहम की ओर यात्रा शुरू की। मोआब से बेथलेहम तक का सफर सरल नहीं था। दोनों महिलाओं को जॉर्डन नदी पार करनी पड़ी और यहूदा के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा। यह यात्रा विशेष रूप से नाओमी के लिए बहुत थकाने वाली थी, क्योंकि वह अब बुजुर्ग हो चुकी थी और जीवन के कई दुखों का सामना कर चुकी थी। जब वे बेथलेहम पहुंची तो वहां जौ की फसल कटाई का समय था, जो शुरुआती गर्मियों का संकेत था। इस समय पर पहुंचना ईश्वर की योजना का हिस्सा माना जा सकता है। बेथलेहम में नाओमी की वापसी ने वहां के लोगों में जिज्ञासा पैदा कर दी। शहर की महिलाएं, जो शायद नाओमी को पहले से जानती थीं, उसकी बदली हालत देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या यह वही नाओमी है? नाओमी ने अपने दर्द को छुपाया नहीं। उसने कहा, मुझे नाओमी मत बुलाओ, जिसका अर्थ है सुखद। मुझे मारा बुलाओ, जिसका अर्थ है कड़वा, क्योंकि भगवान ने मेरी जिंदगी को बहुत कड़वा बना दिया है। मैं भरपूर गई थी, लेकिन अब खाली हाथ वापस आई हूं। नाओमी ने अपने दर्द को खुले तौर पर स्वीकार किया और इसके लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसने भगवान को नहीं छोड़ा। उसने भगवान को सर्वशक्तिमान कहा, जिससे यह पता चलता है कि वह अब भी भगवान की शक्ति को मानती थी। नाओमी और रूथ बेथलेहम में बस गए और वहां की चुनौतियों का सामना करने लगे। उनकी स्थिति कठिन थी। वे दोनों विधवा थीं और उनके पास कोई सहारा नहीं था। नाओमी बूढ़ी हो चुकी थी और रूथ एक अजनबी थी। उनके पास जीने का कोई साधन नहीं था। रूथ ने हिम्मत दिखाई और नाओमी से कहा, मुझे खेत में जाने दो और अनाज बीनने दो। शायद किसी की नजर में मुझे दया मिल जाए। यह प्रस्ताव साहस और विनम्रता से भरा था। मूसा के कानून के अनुसार इस्राएली लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों, विदेशियों और विधवाओं के लिए छोड़ देते थे। रूथ ने इस प्रथा का लाभ उठाने का सोचा और नाओमी से अनुमति लेकर अनाज बीनने का फैसला किया। वह एक खेत में गई जो बोआज का था, जो नाओमी के दिवंगत पति का रिश्तेदार था। रूथ ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत को देखकर खेत के मजदूरों ने उसकी इज्जत की। बोआज ने उसकी मेहनत देखी और उसके बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वह मोआब की महिला है जो नाओमी के साथ लौटी है। यह एक प्रेम और उद्धार की कहानी की शुरुआत थी, जो आगे चलकर कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। नाओमी और रुत मोआब से लौट आए थे। रुत ने नाओमी से कहा कि वह खेतों से अनाज इकट्ठा करना चाहती है। वह सुबह से खेत में काम कर रही थी और केवल थोड़ी देर के लिए आराम किया था। रुत की मेहनत और नाओमी के प्रति उसकी वफादारी की बात बोअज को दिलचस्प लगी। शायद उसे पहले से पता था कि नाओमी की विदेशी बहू उसके साथ आई है। बेथलेहेम में लोग रुत की नाओमी के प्रति वफादारी के बारे में जानते थे और यह बात बोअज को प्रभावित कर रही थी। करुणा और प्रशंसा के कारण बोअज ने रुत के प्रति दया दिखाई। बोअज ने रुत को अपने खेत में अनाज बीनने की अनुमति दी। उसने सलाह दी कि रुत उसकी नौकरानी लड़कियों के पास ही रहे। बोअज ने रुत से कहा, मेरी बेटी सुनो, किसी और खेत में मत जाना, इस खेत को मत छोड़ना और मेरी युवतियों के करीब रहना। उसने अपने कामगारों से भी कहा कि वे रुत को परेशान न करें। उस समय में एक विदेशी महिला खेत में अकेले काम करती तो उसे परेशान किया जा सकता था। बोअज ने रुत की सुरक्षा सुनिश्चित की। बोअज ने यह भी सुनिश्चित किया कि रुत को पानी पीने में कोई दिक्कत न हो। उसने कहा कि जब भी उसे प्यास लगे वह उन बर्तनों से पानी पी सकती है जिन्हें पुरुषों ने भरा था। खास बात यह थी कि उसने अपने कामगारों को कहा कि वे अनाज की कुछ बालियां जानबूझकर गिरा दें ताकि रुत उन्हें आसानी से इकट्ठा कर सके। यह कानून से परे एक उदारता का कार्य था। रुत ने बोअज की दयालुता के लिए गहरी कृतज्ञता और विनम्रता दिखाई। रुत ने बोअज के सामने अपना चेहरा झुका लिया, जो उस संस्कृति में आदर का संकेत था। उसने पूछा, मुझे आपकी नजरों में इतनी कृपा क्यों मिली है कि आप मुझ पर ध्यान दे रहे हैं जबकि मैं एक विदेशी हूं? इस सवाल से उसकी अपनी कमजोर स्थिति के प्रति जागरूकता झलकती है।
बोअज ने रुथ से कहा कि वह जानता है कि उसने अपनी सास के लिए क्या किया। उसने बताया कि रुथ ने अपने माता पिता और देश को छोड़कर ऐसे लोगों के पास आने का साहस किया जिन्हें वह नहीं जानती थी। यह दिखाता है कि रुथ की अच्छी छवि पहले से ही लोगों में फैल चुकी थी। बोअज ने रुथ को आशीर्वाद दिया, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे किए का फल दे और तुम इज़राइल के परमेश्वर से भरपूर पुरस्कार पाओ। उसने कहा कि रुथ ने मोआब के देवताओं को छोड़कर इज़राइल के परमेश्वर में शरण ली। बोअज ने रुथ को अपने कामगारों के साथ भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। उसने कहा, यहाँ आओ, थोड़ा ब्रेड खाओ और अपनी रोटी को सिरके में डुबो लो। उसने उसे भुना हुआ अनाज भी परोसा। रुथ ने इतना खाया कि वह संतुष्ट हो गई और कुछ बचा भी लिया। ये बोअज की रुथ के प्रति बढ़ती इज्जत को दिखाता है। दिन के अंत में रुथ घर लौटी और उसके पास बहुत सारा जौ था, लगभग 22 लीटर। ये मात्रा एक सामान्य काम करने वाली द्वारा एक दिन में इकट्ठा की जाने वाली मात्रा से बहुत ज्यादा थी। जब नाओमी ने देखा कि रुथ ने कितना अनाज लाया है तो वह हैरान रह गई और पूछा, तू आज कहां से अनाज बटोरी? तूने कहां काम किया? उस पर आशीर्वाद हो जिसने तेरा ध्यान रखा। जब नाओमी ने देखा कि रूथ के पास इतनी बड़ी मात्रा में अनाज है तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ खास हुआ है। यह साधारण कटाई का परिणाम नहीं हो सकता था। रूथ ने नाओमी को बताया कि उसकी मुलाकात बोअज से हुई थी। बोअज का नाम सुनते ही नाओमी ने समझ लिया कि यह महत्वपूर्ण है। उसने कहा, परमेश्वर उसे आशीर्वाद दे जिसने जिंदा और मरे पर अपनी दया नहीं रोकी। उसने यह भी बताया कि बोअज उनका करीबी रिश्तेदार है और किन्नसमैन रिडीमर है। इजरायली परंपरा में किन्समैन रिडीमर का एक खास महत्व है। अगर कोई व्यक्ति बिना बच्चों के मर जाता था तो उसके करीबी रिश्तेदार की जिम्मेदारी होती थी कि वह उसकी विधवा से शादी करे और बच्चे पैदा करे ताकि मृत व्यक्ति का नाम और विरासत कायम रहे। इस रिश्तेदार को उन संपत्तियों को वापस खरीदने का भी अधिकार और कर्तव्य होता था जो गरीबी के कारण बेची गई थी। नाओमी ने इस अवसर को समझते हुए एक योजना बनाई और रूथ से कहा कि वह बोअज के खेतों में काम जारी रखे। रूथ ने फसल समाप्त होने तक बोअज के खेतों में काम किया। बाद में नाओमी ने उसे बताया कि उसी रात बोअज खेत में होगा। उसने रूथ को सलाह दी कि वह नहा धोकर, तेल लगाकर और अपने अच्छे कपड़े पहनकर वहां जाए। उसे तब तक बोअज के सामने नहीं आना था जब तक कि वह खाना और पीना खत्म न कर ले। जब बोअज सो जाएगा तो रूथ को देखना था कि वह कहां लेटा है और चुपचाप उसके पैर ढककर वहीं लेट जाना था। नाओमी ने रूथ को भरोसा दिलाया कि बोअज उसे बताएगा कि आगे क्या करना है। यह योजना आज अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय की परंपराओं पर आधारित थी। नाओमी ने सोचा कि बोअज पहले ही रूथ में रुचि दिखा चुका है। उसने रूथ को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा ताकि वह किसी नई शुरुआत के लिए तैयार महिला की तरह लगे। थ्रेसिंग फ्लोर वह जगह थी जहां अनाज को भूसे से अलग किया जाता था और लोग वहां सोते थे ताकि अनाज सुरक्षित रहे। रूथ ने नाओमी की बातों पर विश्वास किया और उनकी सभी बातों का पालन किया। वह चुपचाप थ्रेसिंग फ्लोर पर गई और तब तक इंतजार किया जब तक बोअज ने खाना और पीना खत्म नहीं किया। बोअज संतुष्ट था, नशे में नहीं। जब बोअज सो गया, रूथ धीरे से गई, उसके पैर ढक दिए और वहीं लेट गई। इस इशारे का मतलब उस समय शादी के लिए अपनी उपलब्धता दिखाना था। आधी रात को बोअज जाग गए और देखा कि एक महिला उनके पैरों के पास लेटी है। हैरान होकर उन्होंने पूछा, तू कौन है? रूथ ने जवाब दिया, मैं रुथ हूं, तेरी दासी। अपने कपड़े का कोना मुझ पर बिछा दो क्योंकि तुम मेरे करीबी रिश्तेदार हो। इसका मतलब था कि वह बोअज से शादी करने का अनुरोध कर रही थी ताकि उसके दिवंगत पति की विरासत बच सके। बोअज ने स्थिति का फायदा उठाने या गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय आशीर्वाद और सम्मान के साथ जवाब दिया। उसने कहा, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मेरी बेटी, तुमने पहले से ज्यादा दयालुता दिखाई है। उसने रूथ की अच्छाई को देखा और कहा कि वह उसकी मांग पूरी करेगा। उसने यह भी कहा कि शहर के सभी लोग जानते हैं कि रूथ एक सज्जन महिला है, लेकिन उसने यह भी बताया कि एक करीबी रिश्तेदार था जिसे पहले अधिकार था मोक्ष का। ईमानदारी और सत्यता बोअज ने स्थिति समझाई। यह सच है कि मैं एक छुड़ाने वाला हूं, लेकिन एक और छुड़ाने वाला है जो मुझसे करीब है। उसने वादा किया कि वो सुबह इस मामले को सुलझा देगा, जबकि दूसरे रिश्तेदार के अधिकारों का भी ध्यान रखेगा। साथ ही बोअज ने रूथ को आश्वासन दिया कि अगर वो दूसरा आदमी उसे छुड़ाने का फैसला नहीं करता तो वो खुद ऐसा करेगा। रूथ की इज्जत की चिंता करते हुए बोअज ने उसे अपनी पांवों के पास सुबह तक रहने दिया, लेकिन उसे सलाह दी कि वो सुबह से पहले निकल जाए
ताकि किसी को पता न चले कि एक महिला गांव की खेतों में आई थी। रुथ की इज्जत और रिडेम्पशन प्रक्रिया की इंटेग्रिटी की रक्षा करेगा, जो कि नाओमी के पास वापस भेजने से पहले होने वाली थी। बोअज ने फिर से अपनी उदारता दिखाई और रुथ को 6 माप जौ दिए, बोलते हुए कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जाना। इस उपहार का दोहरा मतलब था। यह रुथ और नाओमी के लिए अतिरिक्त खाना भी था और बोअज की प्रतिबद्धता का एक संकेत भी था कि वह उसी दिन रिडेम्पशन के मामले को सुलझाने के लिए तत्पर है। अगले सुबह, जैसा कि वादा किया गया था, बोअज शहर के दरवाजे की ओर चला गया। प्राचीन इस्राएली संस्कृति में नगर का दरवाजा वो जगह था जहां व्यापार के फैसले और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों का निपटारा किया जाता था। यह एक खुले न्यायालय या फोरम के समान था। बोअज वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि वो मुक्तिदाता जो उसने जिक्र किया था कब आएगा। जब उसने उसे देखा तो बोअज ने कहा, आओ यहां मेरे दोस्त, बैठो। बाइबल में उस आदमी का नाम नहीं बताया गया, बल्कि उसे सिर्फ दोस्त या फलां फलां कहा गया। शायद इसलिए क्योंकि उसने मुक्तिदाता के रूप में अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था और इसलिए उसे नाम से याद करने लायक नहीं समझा गया। बोअज ने प्रक्रिया को कानूनी मान्यता देने के लिए शहर के 10 बुजुर्गों को गवाह के रूप में बुलाया। यह संख्या मनमानी नहीं थी, क्योंकि 10 आदमी इजराइल समाज में स्थानीय कोर्ट के लिए जरूरी कोरम बनाते थे। गवाहों के मौजूद होने पर बोअज ने सबसे करीब के रिश्तेदार के सामने मामला पेश किया। उन्होंने शुरुआत की यह कहकर कि नाओमी, जो मोआब से वापस आई थी, IMC के नाम के हिस्से की जमीन बेच रही है। बोअज ने सबसे करीब के रिश्तेदार को यह अवसर दिया कि वह जमीन खरीदकर अपने परिवार में रख सके। शुरुआत में रिश्तेदार ने रुचि दिखाई और कहा कि वो इसे खरीद लेगा। ज्यादा जमीन मिलने का मौका उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर बोअज ने सौदे का एक अहम पहलू बताया कि जिस दिन तुम नाओमी से जमीन खरीदोगे, तुम्हें उस दिन मौत के बाद की विधवा रूथ को भी लेना होगा, ताकि मृतक का नाम उसकी विरासत के साथ बना रहे। ये जानकारी रिश्तेदार का नजरिया पूरी तरह से बदल गई। उसे समझ में आया कि अगर उसने जमीन खरीदी तो उसे रूथ से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ बच्चे भी पैदा करने होंगे, और वो बच्चे उस जमीन के मालिक बनेंगे, मालन के वारिस के तौर पर, न कि उसके खुद के। इससे उसकी अपनी पारिवारिक विरासत में उलझन आ सकती है और उसकी संपत्ति बांट सकती है। इस उलझन का सामना करते हुए निकटतम रिश्तेदार ने अपना अधिकार छोड़ दिया और कहा, मैं खुद के लिए इसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरी अपनी विरासत खतरे में पड़ेगी। मेरा अधिकार तुम ले लो, क्योंकि मैं इसे नहीं कर सकता। इस अधिकार के हस्तांतरण को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने के लिए उस आदमी ने एक प्रतीकात्मक रिवाज किया। उसने अपनी चप्पल निकाली और उसे बोअज को दे दी। यह एक प्राचीन परंपरा थी। इजराइल का जिक्र व्यवस्था की किताब में किया गया है, जो एक अधिकार के हस्तांतरण या एक समझौते की पुष्टि का प्रतीक है। चप्पल अधिकार या स्वामित्व का प्रतीक है, और जमीन पर कदम रखने का मतलब है अधिकार होना, और उसे छोड़ना उस अधिकार का हस्तांतरण करना है। फिर बोअज ने बुजुर्गों और सभी लोगों के सामने घोषणा की, आप लोग आज गवाह हैं कि मैंने नाओमी के हाथ से IMC और चिलियन और मलोन की सारी संपत्ति ले ली है। इसके अलावा मैंने मोआब की रुथ, मलोन की विधवा को अपनी पत्नी के रूप में लिया है, ताकि उनके नाम को आगे बढ़ा सकूं। उसकी विरासत पर मरे हुए व्यक्ति के नाम को उसके भाइयों या उसके स्थान के दरवाजे से मिटने न देने के लिए बुजुर्गों और सभी लोगों ने दरवाजे पर गवाही दी। उन्होंने उस मिलन के लिए आशीर्वाद भी दिया जो होने वाला था। इस तरह बोअज ने रूथ को अपनी पत्नी बना लिया, उस समय के सभी रिवाजों के अनुसार। बाइबल के पाठ में बस इतना कहा गया है कि बोअज ने रूथ को लिया और वह उसकी पत्नी बन गई। फिर बोअज उसके पास गया और परमेश्वर ने उसे गर्भवती होने की शक्ति दी और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बुजुर्गों और शहर के दरवाजे पर लोगों द्वारा दी गई दुआओं में यह आशा थी कि रूथ याकूब की 2 पत्नियों राचेल और लियाह की तरह बनेंगी, जिन्होंने कई बच्चों को जन्म देकर इजराइल का घर बनाया। ये बच्चे इजराइल की जनजातियों के पूर्वज बने। लोगों ने यह भी चाहा कि बोअज ईपा में शक्तिशाली बने और बेथलेहम में अपने वंश के जरिए प्रसिद्ध नाम कमाए। रूथ और बोअज के बेटे के जन्म ने नाओमी को बेहद खुशी और मुक्ति दी। शहर की स्त्रियों ने उनके साथ जश्न मनाया और कहा, परमेश्वर की महिमा हो। तुम्हारे लिए आज एक उद्धारक है, जिसका नाम इस्राएल में प्रसिद्ध होगा। वह तुम्हारी जिंदगी को फिर से बनाएगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम्हारी बहू जो तुमसे प्यार करती है
ने उसे जन्म दिया है और वह तुम्हारे लिए 7 बेटों से भी बेहतर है। महिलाओं ने कहा कि रुत के माध्यम से परमेश्वर ने नाओमी के लिए उद्धारक भेजा है। यह सिर्फ बोआज नहीं है, बल्कि वह नवजात बेटा है जो परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएगा और नाओमी की बुढ़ापे में देखभाल करेगा। नाओमी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसकी देखभाल करने लगी जैसे वह उसका खुद का बेटा हो। यह दृश्य नाओमी के जीवन में दुख और खालीपन से खुशी और संतोष की ओर बदलाव को दर्शाता है। पड़ोस की महिलाओं ने बच्चे का नाम उबेद रखा, जिसका मतलब होता है सेवक या भक्त। यह उम्मीद थी कि वह परमेश्वर का वफादार सेवक बनेगा या नाओमी के लिए सहारा बनेगा। उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि यह बच्चा इजरायली और मोआबी का मिलन रॉयल वंश का हिस्सा बन जाएगा। रुत की किताब एक चौंकाने वाली वंशावली के साथ खत्म होती है। ओबेद ने जेसे को जन्म दिया और जेसे ने दाऊद को। यह दिखाता है कि कैसे एक विदेशी महिला मोआबी इजराइल के महान राजा दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह के वंश में शामिल हुई। रुत का वंशावली में होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अप्रत्याशित लोगों का उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। मोआब की एक विदेशी और दुखी विधवा उस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है जो उद्धारकर्ता के जन्म की ओर ले जाती है। किताब की वंशावली पेरिज यहूदा और तामार के बेटे से शुरू होती है। ये डेविड की जटिल कहानी को उजागर करती है, जो दिखाती है कि परमेश्वर अप्रत्याशित परिस्थितियों और किनारे पर रहने वाले लोगों के माध्यम से अपने उद्धार योजना को पूरा करते हैं। रुत की कहानी वफादारी, दया, ईमानदारी और कई अन्य सबक सिखाती है। ईश्वरीय कृपा यह दिखाती है कि सच्चा प्यार और वफादारी पीढ़ियों तक असर कर सकते हैं। यह बताती है कि परमेश्वर कड़वे नुकसान को मीठे आशीर्वाद में कैसे बदल सकते हैं और वे उन लोगों की कितनी कद्र करते हैं जो उनकी शरण लेते हैं। रुत और बोअज की कहानी में मुक्ति का यह सुंदर विचार मिलता है, जो शास्त्र में मुख्य विषय है और हमारे अंतिम मुक्तिदाता मसीह में अपनी अभिव्यक्ति पाता है, जो हमें पाप से मुक्त करता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आपकी बाइबल की समझ को गहरा किया है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और गहराई वाली बाइबल की कहानियां मिलती रहें। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिल्कुल अकेले हैं? कोई आपकी परवाह नहीं करता या कोई आपके दिल की गहराइयों को नहीं समझता? यीशु मसीह ने हमें भरोसा दिलाता है, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। यूहन्ना 14:2। इसका मतलब है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भले ही दुनिया आपको भूल जाए, यीशु आपके दिल में हैं और आपकी हर तकलीफ और खुशी को जानते हैं। यह सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आपको लगे कि सब कुछ टूट गया है, जिंदगी में अंधेरा छा गया है, तब याद रखें, यीशु आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। आप उनके साथ एक अनंत प्रेम में जुड़े हुए हैं। अगर आप इस दिव्य सच्चाई को महसूस करना चाहते हैं, तो आज ही यीशु से प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। इस सच्चाई को दूसरों के साथ भी बांटें, क्योंकि शायद किसी और को भी यह जानने की जरूरत हो कि वे अकेले नहीं हैं। Have you ever felt alone, like no one cares about you, or that no one truly understands the depths of your heart? Jesus Christ already assured us, "You are in me and I am in you." John 14:20. This means you are never alone. Even when the world forgets you, Jesus is in your heart, knowing every pain, every joy. This is not just a belief, it's a deep spiritual truth. When you feel broken, when life feels dark, remember, Jesus is with you, within you, and you are forever connected to His infinite love. If you want to experience this divine truth, pray to Jesus today and say, "Lord Jesus, I invite you into my life. Let me feel your presence." Share this powerful truth with others, because someone out there might need to hear that they are not alone. Are you feeling tired, broken, or without hope? Don't give up. God is ready to turn your pain into something amazing. Jeremiah 29:11. God knows the plans He has for you,
plans to help you grow and not to harm you. Philippians 4:13. With Christ giving me strength, I can accomplish anything. Romans 8:28. We know that in everything, God works for the good of those who love him. Isaiah 41:10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Psalm 46:1. God is our safe place and strength, always ready to help when we are in trouble. If you believe God has a plan for you, type Amen in the comments. Like and share this video with someone who needs encouragement today. Subscribe for more inspiration from the Bible. आज से 2000 साल पहले एक बलिदान ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है? ये 40 सेकंड दिल को छू लेने वाली कहानी आज का दिन केवल दुख का नहीं, बल्कि प्रेम और उद्धार का प्रतीक है। यीशु ने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाया और हमारी गलतियों की सजा खुद भुगती। क्रूस पर उनके आखिरी शब्द थे, पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30। गुड फ्राइडे अंत नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। यीशु का बलिदान ये दिखाता है कि आप अनमोल हैं, आप क्षमा किए गए हैं और आप ईश्वर के प्रेम के योग्य हैं। यदि आप मानते हैं कि यीशु ने यह सब आपके लिए किया, तो एक पल निकालकर प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद दें और इस प्रेम को महसूस करें। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज आशा की जरूरत है। आमीन। Over 2,000 years ago, a sacrifice changed the world forever. But have you ever wondered what it truly means for you today? This 40 seconds, powerful and emotional storytelling. On this day, Jesus endured pain, suffering, and death, not for himself, but for us. He carried our burdens, our sins, and our failures to the cross. And in his last breath, he whispered, "It is finished." John 19:30. But Good Friday is not the end. It's the beginning of grace, love, and redemption. No matter your past, no matter your struggles, the cross is proof that you are deeply loved, forgiven, and chosen. If you believe his sacrifice was for you, take a moment today to reflect, to thank him, and to walk in his love. Share this message with someone who needs hope today. What happened in the 3 days between Jesus' death and resurrection? While the world seemed silent, the spiritual realm was alive with activity, events that reveal the depth of God's plan to redeem humanity. These pivotal moments not only fulfilled ancient prophecy, but also set the stage for the ultimate victory over sin and death. After Jesus died on the cross, his body was laid in a tomb, but his soul descended to Hades, the realm of the dead, as described in Luke 23:46. This was no ordinary descent. According to 1 Peter 3:18-20, Jesus preached to the spirits in prison, those who had died before his coming. This wasn't just a visit, it was a proclamation of victory. Jesus announced his triumph over sin and death, demonstrating that he had accomplished what humanity could not achieve on its own. Then, in a breathtaking moment, Matthew 27:52-53 records that after Jesus' resurrection, many holy people who had died were raised to life and appeared to others. This miraculous event was a powerful sign that Jesus had indeed conquered death, foreshadowing the future resurrection promised to all who believe in him. Though his body lay in the tomb, his soul was actively fulfilling God's redemptive plan. What does this mean for us today? The events of those 3 days remind us that Jesus' victory is not just a historical fact, it's a living hope. His triumph over death guarantees our own resurrection and eternal life. Take a moment to reflect. How does this truth shape your understanding of God's love and power? Share your thoughts or explore these scriptures further to deepen your faith. Let the reality of Jesus' victory inspire you to live with purpose and hope. जब क्रूस पर
कराह उठे। मसीह है हमारे, आसमां भी रो पड़ा। छा गया अंधकार रे रे, धरती शोपी गूंज उठा हर कोना। तप्र ने परमेश्वर के छोड़ दिया था कोना। ओ कैसा पल था वो जब सब बदल गया। मंदिर का पर्दा भी फुट कर बह गया। पृथ्वी थरथरा उठी, हर सांस थम गई। प्रेम का बलिदान हो रीत बन गई। जब क्रूस पर कराह उठे। मसीह है हमारे, आसमां भी रो पड़ा। छा गया अंधकार रे रे, धरती शोपी गूंज उठा हर कोना। तप्र ने परमेश्वर के छोड़ दिया था कोना। ओ कैसा पल था वो जब सब बदल गया। मंदिर का पर्दा भी फुट कर बह गया। पृथ्वी थरथरा उठी, हर सांस थम गई। प्रेम का बलिदान हो रीत बन गई। मिट्टी में मिल गए वो लेकिन अमर हुए। पाप के सफर में जैसे हम सब छुए। आंसू बरते पर उम्मीद फरजेब पड़ी। वो रात नहीं थी, वो तो सुबह छिपी खड़ी। ओ कैसा पल था वो जब सब बदल गया। मंदिर का पर्दा भी फट कर रह गया। पृथ्वी थरथरा उठी, हर सांस थम गई। प्रेम का बलिदान मानो रीत बन गई। दिल थामा विश्वास से भरा। वो दर्द का पल बना सबसे प्यारा। राह दिखा गए वो सबको सिखाए। अंधकार में चिराग बनकर जगमगाए। वो कैसा पल था वो जब सब बदल गया। मंदिर का पर्दा भी फट कर रह गया। पृथ्वी थरथरा उठी, हर सांस थम गई। प्रेम का बलिदान मानो रीत बन गई।
happened to Jesus during the 3 days of his death. The 3 days between Jesus' death and resurrection are crucial to understanding God's plan for salvation. So what exactly occurred during this time? After Jesus died, his body was placed in a tomb, and his soul entered Hades, the realm of the dead, as described in Luke 23:46. But what was he doing there? In 1 Peter 3:18-20, we learn that Jesus went to preach to the spirits in prison, those who had died before his coming. This was not just a visit, but a proclamation of his victory over sin and death, declaring that he had triumphed where humanity could not. In Matthew 27:52-53, we see a remarkable event. After Jesus' resurrection, many holy people who had died were raised to life and appeared to others. This was a sign that Jesus had conquered death, and it symbolized the first fruits of the resurrection that all believers will experience. Though Jesus' body was in the tomb, his soul was not inactive. He was actively fulfilling God's plan, proclaiming victory in the realm of the dead and preparing for his resurrection. Then, on the third day, Jesus rose from the dead, victorious over sin, death, and the grave. His resurrection marked the beginning of new life for all who believe in him. This demonstrates that even in the depths of death, Jesus was at work, securing the victory and offering eternal life to everyone who trusts in him. If you believe in the power of Jesus' resurrection, comment Amen and share this video to inspire others with the hope we have in Christ. मत्ती की कहानी। कर संग्रहकर्ता से प्रेरित बनने की यात्रा कल्पना करें कि आपके अपने लोग आपसे इतनी नफरत करते हैं कि आपको देखते ही रास्ता बदल लें। वे आपको गद्दार और चोर मानते हैं और आपकी मौजूदगी को अशुद्ध समझते हैं। मत्ती की यही स्थिति थी। वह रोमन साम्राज्य के लिए कर वसूली करते थे, जिससे उन्हें अपने ही लोगों की कीमत पर धन मिलता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक पल में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी? कौन से शब्द इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने एक तिरस्कृत कर संग्रहकर्ता को इतिहास के 12 प्रमुख प्रेरितों में से एक बना दिया? और कैसे यही व्यक्ति, जिसे कभी सिनेगॉग से बाहर कर दिया गया था, एक ऐसा ग्रंथ लिख सका जो हजारों सालों से लोगों को प्रेरित कर रहा है? मत्ती की कहानी गहरे बदलाव की कहानी है। ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से अछूता नहीं है। आज हम मत्ती की इस यात्रा को समझेंगे, जिसमें उन्होंने कर वसूली छोड़कर एक महान मिशन को अपनाया। वह कर संग्रहकर्ता जो मसीह का प्रेरित और एक सुसमाचार का लेखक बना, जिसने सदियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। पहली शताब्दी का यहूदिया, रोमन साम्राज्य का सख्त शासन। पहली शताब्दी में यहूदिया रोमन साम्राज्य के कठोर शासन में था। यह भूमि यहूदी लोगों की पैतृक भूमि थी, लेकिन अब एक विदेशी शक्ति के अधीन थी। यह शक्ति न केवल राजनीतिक नियंत्रण रखती थी, बल्कि जनता पर भारी करों का बोझ भी डालती थी। रोमन कर प्रणाली बहुत कठोर और जटिल थी, जिसमें भूमि कर, व्यक्तिगत कर, माल पर शुल्क और सड़कों पर टोल शामिल थे। यह प्रणाली यहूदी लोगों के लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि इससे न केवल आर्थिक दबाव बढ़ता था, बल्कि यह उनकी धार्मिक पहचान के भी खिलाफ था। कर संग्रह को और अधिक कुशल बनाने के लिए रोम ने एक ऐसी विधि अपनाई जिसने स्थिति को और खराब कर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों, आमतौर पर यहूदियों को अपनी ओर से कर वसूलने के लिए नियुक्त किया। इन कर संग्रहकर्ताओं को, जिन्हें पब्लिकन कहा जाता था, एक विशिष्ट क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया गया था और उन्हें आवश्यक राशि से अधिक वसूलने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अतिरिक्त राशि उनकी व्यक्तिगत आय होती थी। स्वाभाविक रूप से इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली को प्रोत्साहित किया। यहूदी लोगों और साम्राज्य के सहयोगियों के बीच तनाव गहरा था। एक ऐसे समाज में जहां राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान गहराई से जुड़ी हुई थी, रोम के लिए काम करने वालों को अपने राष्ट्र और अपने विश्वास दोनों के प्रति गद्दार माना जाता था। पब्लिकन विशेष रूप से सबसे अधिक घृणित व्यक्तियों में से थे, जिन्हें वेश्याओं और अन्य सामाजिक बहिष्कृतों के समान माना जाता था। मत्ती का जीवन एक कर संग्रहकर्ता की कहानी। यह इस उथल-पुथल भरे माहौल में था कि लेवी नाम का एक व्यक्ति रहता था, एक कर संग्रहकर्ता, जिसे बाद में मत्ती के नाम से जाना जाएगा। यीशु का अनुयायी बनने से पहले और अंततः 12 प्रेरितों में से एक बनने से पहले मत्ती को लेवी, अल्फाई का पुत्र के रूप में जाना जाता था। मरकुस 2:14 में हम पढ़ते हैं, जब वह चल रहा था, उसने लेवी को, जो अल्फाई का पुत्र था,
कर की चौकी पर बैठे देखा। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चल, और लेवी उठा और उसके पीछे हो लिया। लेवी ने अपने समाज में एक महत्वपूर्ण पद धारण किया था, हालांकि उसके साथी यहूदियों की नजर में यह नैतिक रूप से संदिग्ध था। वह कफरनहूम में एक पब्लिकन के रूप में काम करता था, जो गलील की झील के तट पर स्थित एक शहर था। सुसमाचार उसे कर की चौकी पर बैठे हुए वर्णित करते हैं, जो दर्शाता है कि उसके पास कर वसूलने के लिए एक स्थापित स्थान था। कफरनहूम एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था, जो दमिश्क को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले एक कारवां मार्ग पर स्थित था। यह हेरोदेस अंतिपास और उसके भाई फिलिप के शासित क्षेत्रों के बीच एक सीमा बिंदु के रूप में भी कार्य करता था। इसने शहर को पारगमन में माल पर कर वसूलने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। मत्ती जैसे कर संग्रहकर्ता की भूमिका में केवल पैसा प्राप्त करना ही शामिल नहीं था। उसे माल के मूल्य का आकलन करना, लागू करों का निर्धारण करना, विस्तृत रिकॉर्ड रखना और रोमन अधिकारियों को रिपोर्ट करना शामिल था। इसके लिए गणित में प्रवीणता, कई मुद्राओं से परिचित होना, रिकॉर्ड रखने के कौशल और विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ संवाद करने के लिए विदेशी भाषाओं का कुछ ज्ञान आवश्यक था। मत्ती इसलिए संभवतः एक शिक्षित व्यक्ति था, जिसके पास कौशल थे जो उसे अपने स्थानीय समाज में अलग करते थे। कफरनहूम की रणनीतिक स्थिति एक व्यापार और सीमा शहर के रूप में मत्ती के पद को विशेष रूप से लाभदायक बनाती थी। गुजरने वाले कारवां मूल्यवान माल लेकर जाते थे, जिनमें से प्रत्येक कराधान का अवसर प्रदान करता था। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि अन्य पब्लिकन की तरह मत्ती ने भी अपने पेशे से काफी धन अर्जित किया होगा। हालांकि एक यहूदी के लिए कर संग्रहकर्ता होने के नैतिक और सामाजिक निहितार्थ विनाशकारी थे। रोमन उत्पीड़कों के लिए सीधे काम करके मत्ती न केवल अपने लोगों के राजनीतिक दुश्मन के साथ सहयोग कर रहा था, बल्कि विभिन्न यहूदी धार्मिक कानूनों का भी उल्लंघन कर रहा था। अन्य जातियों के साथ उसका निरंतर संपर्क उसे लेविटिकल मानकों के अनुसार अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध बना देता था। इसके अलावा कर संग्रहकर्ताओं से जुड़ा व्यापक भ्रष्टाचार टोरा में चोरी और व्यापार में बेईमानी के खिलाफ आज्ञाओं के सीधे विपरीत था, जो मौलिक थे। पहली शताब्दी के यहूदी समाज में मत्ती जैसे पब्लिकन एक विरोधाभासी स्थिति में थे। आर्थिक रूप से समृद्ध लेकिन सामाजिक रूप से घृणित, वे एक विचित्र वर्ग बनाते थे जो दो दुनियाओं के बीच एक लिम्बो में रहते थे। न तो रोमनों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किए जाते थे, जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया था, न ही उन यहूदियों द्वारा जिनसे वे जन्म और विरासत से संबंधित थे। सबसे ऊपर कर संग्रहकर्ताओं को यहूदी राष्ट्र के प्रति गद्दार माना जाता था। एक ऐसे समय में जब इजराइल रोमन शासन से मुक्ति की लालसा कर रहा था और मसीहाई अपेक्षाएं उच्च थीं, विदेशी उत्पीड़क के साथ सहयोग करना राष्ट्रीय विश्वासघात का कार्य माना जाता था। मत्ती जब वह कफरनहूम में अपनी कर चौकी पर बैठा था, अपने साथी यहूदियों के लिए रोमन उत्पीड़न का दैनिक चेहरा था। जबरन वसूली और भ्रष्टाचार की सामान्य प्रथा ने कर संग्रहकर्ताओं की नकारात्मक प्रतिष्ठा को और खराब कर दिया। रोमन कराधान प्रणाली ने ऐसे दुरुपयोग को प्रोत्साहित किया क्योंकि संग्रहकर्ता अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाने के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलते थे। यह प्रथा बाइबल में ही प्रमाणित है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कर संग्रहकर्ताओं द्वारा पूछे जाने पर कि उन्हें क्या करना चाहिए, निर्धारित से अधिक मत वसूलो। जबरन वसूली इतनी व्यापक थी कि केवल उन्हें इसमें शामिल न होने का निर्देश देना ही पर्याप्त था। यह स्पष्ट संकेत था कि यह प्रथा कर संग्रहकर्ताओं के बीच कितनी व्यापक थी। इस व्यवहार का परिणाम गहरी सामाजिक और धार्मिक अलगाव था। मत्ती ने संभवतः इस बहिष्कार का वजन दैनिक रूप से अनुभव किया। कफरनहूम की सड़कों पर कोई कल्पना कर सकता है कि कैसे अन्य यहूदी उसे आते देख दूसरी ओर मुड़ जाते थे। माताएं अपने बच्चों को खींच लेती थीं और व्यापारी उसकी उपस्थिति में अपनी आंखें नीची कर लेते थे। यहूदी सामुदायिक और धार्मिक जीवन से बहिष्कार शायद इस स्थिति का सबसे दर्दनाक पहलू था। सिनेगॉग, जो न केवल पूजा के केंद्र थे बल्कि सामाजिक जीवन और शिक्षा के केंद्र भी थे, संभवतः मत्ती के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते थे। उसे सप्त सेवाओं के दौरान शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाता था। वह कानून के बारे में चर्चाओं में भाग नहीं लेता था और उसे धार्मिक त्योहारों के दौरान समुदाय के उत्सवों में आमंत्रित नहीं किया जाता था, जो परिवारों को एकत्र करते थे और लोगों के बंधन को परमेश्वर और एक दूसरे के साथ मजबूत करते थे। मत्ती एक बाहरी व्यक्ति बना रहता।
उस सामुदायिकता से अलग जो यहूदी पहचान को परिभाषित करती थी। फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने कर संग्रहकर्ताओं के प्रति विशेष घृणा रखी, अपने तिरस्कार को खुले तौर पर व्यक्त किया। फरीसी जो अनुष्ठानिक शुद्धता और कानून के सख्त पालन का पीछा करते थे, कर संग्रहकर्ताओं को एक अलग श्रेणी मानते थे, अक्सर उन्हें पापियों के साथ समूहित करते थे। मत्ती 9:11 में मत्ती के अपने बुलाए जाने के बाद हम इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त होते देखते हैं। जब फरीसियों ने यह देखा तो उन्होंने उसके चेलों से पूछा, तुम्हारा गुरु कर संग्रहकर्ताओं और पापियों के साथ क्यों खाता है? कर संग्रहकर्ताओं को पापियों के साथ लगातार जोड़ना सुसमाचार के पाठों में उस समय यहूदी समाज में उनके प्रति प्रचलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह इस सामाजिक अलगाव और धार्मिक तिरस्कार के संदर्भ में था कि मत्ती के जीवन में निर्णायक क्षण आया। सुसमाचार हमें इस परिवर्तनकारी मुठभेड़ का संक्षिप्त लेकिन गहरा महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करते हैं। मत्ती 9:9 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो उसने मत्ती नाम के एक व्यक्ति को कर की चौकी पर बैठे देखा। उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल, और मत्ती उठा और उसके पीछे हो लिया। इस मुठभेड़ का स्थान कफरनहूम में सीमा शुल्क चौकी थी, जहां यीशु अपने प्रारंभिक मंत्रालय का अधिकांश भाग कर रहा था। कफरनहूम उसका शहर बन गया था। मत्ती 9:1 जब यीशु ने नासरत छोड़ दिया था, गलील की झील के तट पर स्थित यह शहर उस क्षेत्र में उसकी गतिविधियों का आधार बन गया था, और यह इस व्यस्त वाणिज्य केंद्र की सड़कों पर था कि यीशु एक दिन गुजरा और मत्ती को उसके पद पर देखा। यीशु के गलील में प्रारंभिक मंत्रालय का संदर्भ इस मुठभेड़ को अर्थ देता है। इस समय तक यीशु ने पहले ही चेलों को बुलाना शुरू कर दिया था, उल्लेखनीय चमत्कार किए थे और एक अधिकार के साथ शिक्षा देना शुरू कर दिया था जो भीड़ को चकित कर देता था। उसकी प्रसिद्धि तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। अपनी कर चौकी से मत्ती ने संभवतः पहले ही इस नए रब्बी के बारे में सुना होगा जो बीमारियों को ठीक करता था, धार्मिक नेताओं को चुनौती देता था और परमेश्वर के राज्य के बारे में एक असामान्य अधिकार के साथ बोलता था। यीशु के मत्ती के लिए पहले शब्द सरल और सीधे थे, मेरे पीछे चल। मूल ग्रीक पाठ में केवल 2 शब्द देवरोओपिसोमो, ड्यूरोओपिसोएमियो, फिर भी एक शक्ति और महत्व से भरे हुए जो उनकी स्पष्ट सरलता से परे थे। यह बुलावा केवल यीशु के साथ उसकी यात्राओं पर शारीरिक रूप से शामिल होने का निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक पूर्ण जीवन परिवर्तन, प्राथमिकताओं और पहचान के एक कट्टरपंथी पुनर्निर्देशन का आह्वान था। पहली शताब्दी के यहूदी सांस्कृतिक संदर्भ में एक शिक्षक का अनुसरण करना केवल उसकी शिक्षाओं से सीखने से कहीं अधिक था। इसका अर्थ था उसके जीवन के तरीके को अपनाना, उसके मिशन में साझा करना और अंततः उसके जैसा बनना। जब यीशु ने मत्ती को मेरे पीछे चल शब्दों के साथ बुलाया तो वह इस सामाजिक रूप से अस्वीकृत कर संग्रहकर्ता को एक नए समुदाय में प्रवेश करने, एक नई पहचान अपनाने और एक दिव्य मिशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा था। मत्ती की प्रतिक्रिया बुलावे के समान ही उल्लेखनीय थी। उसने तुरंत उठकर अपनी कर चौकी छोड़ दी और यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती का कट्टरपंथी और तात्कालिक निर्णय मसीह के साथ एक मुठभेड़ की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। इस निर्णय की परिमाण को पूरी तरह से समझने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि मत्ती क्या छोड़ रहा था। एक लाभदायक पद, वित्तीय सुरक्षा और एक स्थापित जीवन शैली। एक पल में उसने यह सब एक भ्रमणशील शिक्षक का अनुसरण करने की अनिश्चितता के लिए छोड़ दिया। यीशु का मत्ती को बुलाना न केवल कर संग्रहकर्ता के जीवन को बदल देता है, बल्कि अन्य हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए मसीह से मिलने का एक अनूठा अवसर भी बनाता है। मत्ती का बुलाए जाने के बाद अगला कार्य अपने घर में एक महान भोज की मेजबानी करना था, जिसमें यीशु को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लूका 5:29 इस घटना के बारे में विवरण प्रदान करता है। तब लेवी ने अपने घर में यीशु के लिए एक बड़ा भोज दिया और कर संग्रहकर्ताओं और अन्य लोगों की एक बड़ी भीड़ उनके साथ खाने के लिए थी। मत्ती का यीशु को अपने घर में भोज के लिए आमंत्रित करने का निर्णय उसकी दिव्य बुलाहट की प्रतिक्रिया के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। यह एक निजी गुप्त बैठक नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक और विस्तृत उत्सव था। मत्ती के लिए यीशु से मिलना आनंद और साझा करने के योग्य कुछ था, और वह अपने नए शिक्षक को
हर किसी से परिचित कराना चाहता था जिसे वह जानता था। भोज का पैमाना, जिसे लूका एक महान भोज के रूप में वर्णित करता है, यह सुझाव देता है कि मत्ती एक धनी व्यक्ति था जो उदारता से कई मेहमानों का मनोरंजन करने में सक्षम था, संभवतः अपने कर संग्रहकर्ता के पेशे से प्राप्त धन। इस घटना में अन्य कर संग्रहकर्ताओं और पापियों की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये मत्ती के सहयोगी और मित्र थे जो उसके जैसे धार्मिक यहूदी समाज के किनारे पर रहते थे। इस समूह को यीशु से मिलवाने के लिए आमंत्रित करके मत्ती ने तुरंत मसीह के मिशन को समझा, जो ठीक उन लोगों तक पहुंचने के लिए था जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया था। इस भोज में हम नए शिष्य के पहले मिशनरी कार्य को देखते हैं, दूसरों को यीशु से मिलवाना। इस असामान्य सभा को उस समय के धार्मिक पर्यवेक्षकों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया गया था। फरीसियों की आलोचना जल्दी सामने आई, जैसा कि मरकुस 2:16 में दर्ज है। जब शास्त्री, जो फरीसी थे, ने उसे पापियों और कर संग्रहकर्ताओं के साथ खाते देखा, तो उन्होंने उसके चेलों से पूछा, वह कर संग्रहकर्ताओं और पापियों के साथ क्यों खाता और पीता है? फरीसियों के लिए, जो अनुष्ठानिक शुद्धता और सामाजिक अलगाव के सख्त नियमों का पालन करते थे, यीशु की उन लोगों के साथ भोजन करने की इच्छा जिन्हें अशुद्ध माना जाता था, गहराई से समस्याग्रस्त और प्रश्नात्मक थी। यीशु की इस आलोचना के प्रति प्रतिक्रिया परिवर्तनकारी थी और सुसमाचार के एक मौलिक सिद्धांत की स्थापना की। मरकुस 2:17 में उसने घोषणा की, स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बीमारों को। मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। इन शब्दों के साथ यीशु ने न केवल हाशिए पर रहने वालों के साथ अपने संबंध का बचाव किया, बल्कि अपने मिशन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। खोए हुओं को ढूंढना और बचाना, उन लोगों को आध्यात्मिक उपचार प्रदान करना जो अपनी आवश्यकता को पहचानते थे। मत्ती के घर में यह भोज पूर्व कर संग्रहकर्ता के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह यीशु के अनुयायी के रूप में उसका पहला सार्वजनिक कार्य था और उसके रूपांतरण की प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाता है। वह मेज जो एक बार अलगाव और शोषण का उपकरण थी, कर संग्रहकर्ता की मेज अब सहभागिता और सुलह का स्थान बन रही थी। वह व्यक्ति जो एक बार सीजर के लिए पैसा इकट्ठा करता था, अब परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था। मत्ती का परिवर्तन, एक नया जीवन। यीशु का अनुसरण करने का मत्ती का निर्णय एक गहरे व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत थी। अपनी कर चौकी को पीछे छोड़ना केवल एक साधारण करियर परिवर्तन से कहीं अधिक था। यह धन और विशेष अधिकारों से भरे जीवन का परित्याग था, जो अपने ही देशवासियों के कष्टों की कीमत पर बनाया गया था। मत्ती के लिए मसीह का अनुसरण करने का अर्थ था न केवल आय के एक गारंटीकृत स्रोत को छोड़ना, बल्कि उस सामाजिक स्थिति और भौतिक सुख को भी छोड़ना जो उसके पद ने प्रदान किया था। शिष्यत्व की अनिश्चितता के लिए वित्तीय सुरक्षा का आदान प्रदान करना विश्वास का एक असाधारण कार्य था। एक कर संग्रहकर्ता के रूप में मत्ती ने एक आर्थिक रूप से स्थिर, शायद विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लिया था। कर संग्रहकर्ता अक्सर अपने काम के माध्यम से काफी धन जमा करते थे। उठकर और यीशु का अनुसरण करके वह दैनिक रूप से दिव्य प्रावधान पर निर्भर रहने के मार्ग पर चल पड़ा। यीशु ने स्वयं अपने अनुयायियों को मत्ती 8:2.20 में चेतावनी दी थी, लोमड़ियों के बिल और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मत्ती इसी भ्रमणशील जीवन को चुन रहा था, भौतिक अनिश्चितता का। यीशु के अनुयायी के रूप में पहले पाठ मत्ती के लिए चुनौतीपूर्ण और मुक्तिदायक दोनों रहे होंगे। अचानक वह अब सामाजिक रूप से अलग थलग नहीं था, बल्कि एक नए समुदाय, शिष्यों के समुदाय का हिस्सा था। वह अब मूल्यों के एक नए सेट को सीख रहा था, जहां उदारता ने लालच की जगह ले ली, सेवा ने शोषण की जगह ले ली और दूसरों के लिए प्रेम ने स्वार्थ की जगह ले ली। यीशु की परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षाएं, जो रोमन साम्राज्य के तर्क के इतने विपरीत थीं, जिसकी मत्ती ने एक बार सेवा की थी, उसके विश्व दृष्टि और प्राथमिकताओं को बदलने लगी। इस प्रारंभिक परिवर्तन का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलू लेवी से मत्ती नाम में परिवर्तन था। हालांकि सुसमाचार स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि यह परिवर्तन कब या क्यों हुआ। यह उल्लेखनीय है कि अपने स्वयं के सुसमाचार में वह विशेष रूप से अपने आप को मत्ती के रूप में संदर्भित करता है। मत्ती 9:9।
मत्ती नाम का अर्थ है परमेश्वर का उपहार या यहोवा का उपहार। यह नाम परिवर्तन उस नई पहचान का प्रतीक लगता है जो उसे मिली थी। अब वह लेवी कर संग्रहकर्ता के रूप में परिभाषित नहीं था, बल्कि मत्ती परमेश्वर का उपहार और उसका साधन था। मत्ती का प्रेरित के रूप में चयन और मत्ती का यीशु के साथ सफर तब और महत्वपूर्ण हो गया जब उसे 12 प्रेरितों में से एक के रूप में चुना गया। यह महत्वपूर्ण क्षण मत्ती 10:1-4 में वर्णित है। यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर बीमारी को ठीक करने का अधिकार दिया। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बर्तुलमई, थोमा और मत्ती कर संग्रहकर्ता, हल्फई का पुत्र याकूब और थद्दियुस, शमौन झिलोतेस और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। 12 प्रेरितों में से एक के रूप में इस आधिकारिक चयन ने यीशु के आंदोलन में मत्ती की स्थिति को ऊंचा कर दिया। 12 केवल साधारण अनुयायी नहीं थे, बल्कि विशेष रूप से चुने गए प्रतिनिधि थे जिन्हें यीशु के मिशन को जारी रखने का अधिकार दिया गया था। इस तथ्य कि मसीह ने एक पूर्व कर संग्रहकर्ता को इस आंतरिक चक्र में शामिल किया, उसके मंत्रालय की क्रांतिकारी प्रकृति को प्रदर्शित करता था। एक ऐसे समाज में जहां कर संग्रहकर्ताओं को गद्दार और पापी माना जाता था, यीशु ने न केवल मत्ती को एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उसे प्रेरितिक अधिकार की स्थिति में भी ऊंचा किया। मत्ती का सुसमाचार, एक स्थायी विरासत। मत्ती की सबसे स्थायी विरासत निस्संदेह उसका सुसमाचार है। मत्ती का सुसमाचार न केवल यीशु के जीवन और शिक्षाओं का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है, बल्कि यहूदी पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मत्ती का सुसमाचार यीशु को यहूदी धर्मशास्त्र और भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो यहूदी ईसाइयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। मत्ती का सुसमाचार यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का एक शक्तिशाली विवरण प्रदान करता है, और यह आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। मत्ती की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति मसीह की कृपा से परे नहीं है, और परमेश्वर अक्सर असंभावित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपने मोचन के कार्य में शक्तिशाली साधनों के रूप में उपयोग करता है। मत्ती की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की कृपा किसी को भी बदल सकती है। वह व्यक्ति जो एक बार अपने समुदाय से घृणित था, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। मत्ती का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से बाहर नहीं है, और हर किसी के लिए एक नई शुरुआत संभव है। तो अगर मत्ती की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। याद रखिए, परमेश्वर की कृपा हर किसी के लिए है, और वह हर किसी को एक नई शुरुआत दे सकता है। धन्यवाद। Today's devotional is inspired by one of the most heart-wrenching moments in Scripture, when Jesus cried out on the cross, my God, why have you forsaken me?" Matthew 27:46. This cry resonates deeply with anyone who has ever felt abandoned or overwhelmed by pain. But within it lies a profound truth about God's love and His presence in our suffering. 1. The depth of Jesus' suffering. On the cross, Jesus bore the weight of humanity's sin. His cry wasn't a loss of faith, but an expression of the immense cost of our salvation. By quoting Psalm 22, he pointed to a psalm that begins in despair, but ends in triumph, reminding us that even in suffering, God's plan is at work. 2. When we feel forsaken. It's normal to feel abandoned during life's darkest seasons, but Scripture reassures us, the Lord is close to the brokenhearted. Psalm 34:18. Just as God never truly abandoned Jesus, He will never leave you. His promise stands firm, I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13:5. 3. God's presence in our pain. Throughout Scripture, we see God meeting His people in their despair. Hagar encountered El Roi, the God who sees her, Genesis 16. Shadrach, Meshach, and Abednego
found God with them in the fiery furnace. Daniel 3. Mary Magdalene's grief turned to joy when she encountered the risen Jesus. John 20. These stories remind us that God is not absent in our trials. He is walking with us through them. 4. The hope of resurrection. Jesus' story didn't end with his cry on the cross, it culminated in his resurrection. This assures us that no suffering is final and no pain is wasted. The same power that raised Jesus from the dead is at work in your life today. Ephesians 1:19-20. Encouragement for today. If you're feeling weighed down by life's burdens, remember this. Your story isn't over. God is writing a redemptive story through your pain. Trust him even when you can't see the full picture. Take a moment today to reflect. How has God been present in your trials? Share below and encourage someone else who may need this reminder. Jesus Christ, the captain of our salvation, was perfected through suffering so we could be brought to glory. Trust his plan. He leads us through every trial. Hebrews 2:10. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. This verse emphasizes that it was fitting for God, the Creator and क्या टैरो आपकी आत्मा की सच्चाई दिखा सकता है? क्या आप जानते हैं कि टैरो केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है? यह आपकी आत्मा का मार्गदर्शन भी करता है। टैरो कार्ड ब्रह्मांड के गूढ़ संदेश हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को जगाने का संकेत देता है, जबकि द फूल आपको जीवन की यात्रा में अज्ञात को अपनाने का साहस करने के लिए कहता है। जब हम टैरो को सही तरीके से समझते हैं, तो यह हमें हमारे उच्चतर स्व के करीब ले जाता है। अगर आप टैरो में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में वह लिखें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए फॉलो करें। बापूजी का यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। बापूजी कहते हैं, शांत मन ही आत्मज्ञान की कुंजी है। क्या आप तैयार हैं? जैसे अशांत सागर में कुछ भी साफ नहीं दिखता, वैसे ही व्यस्त और विचलित मन में आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं उतरता। ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही वह मार्ग है जिससे हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतर सकते हैं और परम सत्य को जान सकते हैं। जब हम विचारों के शोर को शांत करना सीखते हैं, तब सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप इस ज्ञान को महसूस करते हैं, तो कमेंट करें शांति। बाइबल के यह वचन आपको दिव्य ज्ञान देंगे। क्या आप आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हैं? बाइबल में जवाब है। नीति वचन 4:7 कहता है, बुद्धि मुख्य चीज है, इसलिए बुद्धि प्राप्त करो। लेकिन यह बुद्धि केवल किताबों से नहीं मिलती, यह परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध से आती है। जब हम ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हमारा हृदय प्रबुद्ध होता है और हमारे निर्णय दिव्य ज्ञान से भरे होते हैं। यही सच्ची समझ है, यही असली सफलता है। अगर आप परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट करें ज्ञान। Boa noite, Pai. Mais um dia vencido, amanhã já é sexta-feira e para mim é um privilégio tirar um minuto para orar e agradecer por cada momento do dia que passou e por todas as oportunidades de crescimento e aprendizado. Sei que, se não fosse a tua mão, as batalhas, as dificuldades e todos os obstáculos teriam me parado. Mas eu estou aqui, firme, sempre olhando para o meu alvo, que é Cristo Jesus, a minha resplandecente estrela da manhã e aquele a quem me guarda e me livra de todo o mal.
Ah, meu Deus, abençoe tudo aquele que ouvir esta oração, que não me falte fé, sabedoria e força para sempre enfrentar os desafios com coragem e determinação, sempre olhando para o nosso alvo. Que no novo amanhecer, a sexta-feira que está logo aí, eu possa estar cheio de fé e sabedoria para me livrar das palavras enganosas, das falsas amizades e daqueles que procuram sempre me ver caído. Dai-me uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. The Bible says that everything has its time, so be patient. God knows what is best for you. Embrace the process, and you will step into your purpose. Remember, the tallest tree was once just a seed. Growth takes time, and during that time, you are being molded and strengthened for what lies ahead. There is a time for every purpose under heaven. You don't need to rush, you need faith. At the right time, everything will fall into place. The lessons you've learned along the way will make the victory even sweeter. The battles will be won, the tears will dry, and victory will come. And when that moment arrives, you'll look back and say, it was worth it. God's timing is a mystery. We won't always understand it, and that's okay. It's not our role to always understand the why or when, but to trust that God is always working behind the scenes for our good. In your prayer, ask for God's plans and dreams for your life to come to pass, because His plans are always greater and better than ours. Believe that everything you're going through is preparing you for the blessings to come. If you believe this, comment, God's timing is perfect, and share this message with someone who needs it today. Bom dia, hoje é domingo, Pai, dia 9 de fevereiro, e venho diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de fazer o meu melhor. Sei que a vida tem seus desafios, mas confio em Ti, pois Tu és a minha força e o meu guia. Ajuda-me a dar o meu melhor em cada tarefa, sabendo que mesmo nas dificuldades, o Senhor está ao meu lado. Quando os desafios surgirem, que eu tenha confiança em Ti para seguir em frente com coragem e fé. Quando o cansaço bater, que eu encontre em Ti a renovação e a força que preciso, que em cada novo amanhecer, minha confiança em Ti seja renovada. Obrigado, Deus, por me mostrar que não estou sozinho e por me dar forças para confiar em Ti. Sei que o Senhor me sustenta e me guia a cada passo. Confia em Ti. Sigo confiante. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. I love you, Lord, for
For your mercy never fails me. All my days I've been held in. Deus, obrigado por mais um sábado concluído na sua presença, Senhor. Coloco meu descanso e minha noite em tuas mãos amorosas. Obrigado por me proteger e livrar os meus familiares e amigos de tudo que é maligno. Que esse final de dia seja repleto da sua graça e que bênçãos caiam sobre mim. Que eu possa descansar e sonhar com os anjos, me guardando para um novo amanhecer. Gratidão por cuidar de mim e por estar ao meu lado em cada momento que mais precisei do Senhor. Me ilumine com esperança e com seu amor. Agradeço por esta belíssima noite de sábado e peço que o Senhor guarde a mim e minha família. Quero te agradecer, Pai, por não soltar a minha mão e nunca me abandonar. Que eu possa continuar trilhando o caminho em direção ao meu alvo, que é Cristo Jesus. Amanhã te peço um domingo abençoado, cheio de paz e repleto da tua doce presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Итак,
Quarta-feira, Senhor, e a única palavra em nossos corações é gratidão. Gratidão, meu Deus, por este abençoado dia. Se hoje estamos despertos, respirando e com saúde, já é motivos suficientes para levantar as mãos para o alto e agradecer. Sabemos que muitos desejaram acordar, mas o Senhor nos escolheu e nos concedeu o privilégio de estarmos de pé e poder seguir em direção aos nossos sonhos. Pedimos, Senhor, que a Tua paz desça sobre nós nesta quarta-feira, abençoando nosso dia, nossos familiares e amigos. Repreende, meu Pai, todo o mal que tenta se projetar em nossas vidas. Quebra todas as armadilhas e afasta-nos das invejas e dos olhares carregados de maldade. Que as Tuas bênçãos sem medidas se manifestem de maneira extraordinária, glorificando o Teu santo nome. Que nossa caminhada hoje seja um testemunho do poder transformador da Tua graça. Que a luz divina guie nossos passos, refletindo amor e bondade neste dia. Amém. Deus, finalizo minha noite de quarta-feira com essa frase. Pai, organiza minha vida e assume o controle de tudo. Ajude-me a fazer tudo o que preciso fazer. Dá-me sabedoria, paz e discernimento em meio ao inesperado. Esteja presente sempre no meu coração, que eu possa sentir Tua presença em cada momento, guiando meus passos e iluminando meu caminho. Que Tua mão protetora me envolva, afastando todo o mal e trazendo serenidade para enfrentar os desafios da vida. Agradeço por todas as bênçãos e por Tua infinita bondade. Em nome de Jesus, amém. For your mercy never fails me. All my me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai
You guessed it right. I am Jesus. And after all these years, I'm still here, still walking with you. Life. It's not about the years you've lived, but the love you've given. I've felt its joys and its pains. And I tell you this, every tear, every struggle, every moment of hope has meaning. If you're feeling lost or weary, come sit with me a while. Say, I'm here, if you need rest. Share this with someone who needs to hear this today. The cross behind me. It's a reminder. Love always wins. Double tap if you believe it too. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. My child, this rose is for you. Its beauty, its fragrance. It's a reminder of how deeply I love you. Every petal is a promise. I see you, I know you, and I will never let you go. If you feel my love today, say I receive it. Share this with someone who needs to know they are cherished. I am here, holding this rose, waiting for you. Will you come to me? Double tap if you believe in my love. Your heart is safe with me. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é. From the moment that I wake up, Jesus stands in front of a wooden green door, heavy rain pouring around him. He looks up at the sky, takes a deep breath and raises his hands. Then he turns around and knocks on the door, but nobody opens it, and it remains closed. But he doesn't give up and won't stop knocking, yet nobody has mercy, Hello, is there anybody home? and only the sound of raindrops can be heard. Nobody opens the door. Will you open the door for me? Oh God, have mercy.